الكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے پیر و مرشد استاد محترم شیخ الحدیث حضرت اقدس نے بہت احسن انداز میں بات کر دی ہے. ان کا حکم ہوتا ہے اور اس علاقے میں آتا ہوں، حاجی صاحب کی دعائیں ہیں، والد والدہ نہ ہو تو کچھ بزرگ دعائیں دینے والے ہوں تو ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور جو ہمارے استاد محترم مدرسہ چلا رہے ہیں، اس پورے علاقے میں دین کا کام کر رہے ہیں، آپ پورے اس علاقے کے لوگ خوش نصیب ہو. سب کہو الحمدللہ. یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ ہمارے استاد محترم کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. بات استاد جی نے کر دی ہے اور گرمی بھی ہے. اللہ جہنم کی گرمی سے سب کو محفوظ فرمائے. اور ہمارے ایک نوجوان ساتھی، ہمارے بھائی، محبت کرنے والے، علماء سے بڑی محبت تھی، بھائی حویز شہید، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. اور دوسری دکھ کی بات کہ بہن بھی ساتھ شہید ہوئی. 2 جنازے ایک گھر سے اٹھے، بڑی دکھ کی بات ہے. یہ ایسے سانحات سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اب ہم اویس بھائی کے والد صاحب کو، والدہ کو، بہنوں کو ہم جتنی تسلیاں دیں تو ان کو تسلی ملے گی بڑے آرام سے. قتل کی موت جو ہوتی ہے یہ بڑی سخت موت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ والدین کو، بہنوں کو، سب کو، اور ہماری جو بہن ہیں ان کی اولاد بھی تھی، ان کی اولاد کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس علاقے میں ہمارے حاجی صاحب بڑے روئے ہیں اس دن، جس دن یہاں پہ یہ قتل ہوئے تھے. تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں پہلی مرتبہ ایسا ظلم ہوا ہے، آج سے پہلے ایسا کوئی معاملہ اس گاؤں میں نہیں ہوا ہے. یہ بزرگ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں. جس طرح حاجی صاحب بڑے ناراض ہوئے، ہمارے علاقے میں ایک شادی ہوئی تھی جس میں ہمارے کچھ ساتھیوں نے ڈھولکی ماری تھی. تو حاجی صاحب بڑے روئے ہیں اور اس پہ میں نے بیان بھی کیا تھا اور سب ساتھیوں نے اس بات کو مانا ہے کہ ہماری شادیاں ہوگی، اچھا کھانا دیں گے انشاءاللہ، لیکن آئندہ ہم عزم کرتے ہیں کہ ہماری شادی میں کوئی ڈھولکی وغیرہ ناچنے والا نہیں آئے گا. تو یہ بزرگ ہوتے ہیں جن کی نظر ان کاموں کی طرف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش اور محنتوں کو قبول فرمائے. تو میں دعا کرتا ہوں ہمارے اویس بھائی کے جتنے بھی لاحقین ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ اس خاندان میں برکتیں عطا فرمائے. ایک دم سے میرا نوجوان بھائی آیا اور اس کو گولیاں مار دی گئیں اور اس کی بہن کو مار دیا گیا. عورت کو تو کافر کی عورت ہو اس کو بھی مارنا جائز نہیں ہے، چاہے مسلمان کی بہن وہ بھی مسلمان ہے، کتنا بڑا ظلم کیوں نہ کر دے اس کو مارنا بھی جائز نہیں ہے. صرف وہ عورت جس سے گناہ کبیرہ ہو گیا، غلطی ہوگی، شادی شدہ تو اس کو سنسار کیا جائے گا اور وہ بھی 4 گواہ ملیں گے تب، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. بڑی دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में है और एक काफिर की बेटी जिहाद में मुसलमानों के खिलाफ आके लड़ रही है। आका ने कहा बिलाल उसके सर से कपड़ा उतर गया, तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कंबल उतार कर दी, पाक चादर, पाक कंबल। मेरे आका की जिस कंबल को कुरान ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, पाक चादर मेरे आका ने अपने मुंडे से कंधे से उठाई और सहाबी रसूल को दी। मेरे सहाबी जाओ, ये औरत खड़ी है, उसके सर पे कपड़ा नहीं है, इसके सर पे ये चादर देकर आओ। तो सहाबी कहने लगे आका जी ये तो काफिर की बेटी है, लड़ने के लिए आई है। तो आका ने कहा ऐ मेरे सहाबी, अल बिन्तुल बिन्त वलो काना बिन्तुल काफिर, बेटी बेटी होती है चाहे काफिर की क्यों ना हो। बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है। अल्लाह ताला वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। हम खुद रोए हैं, हमारे आंखों से आंसू निकले कि एक नौजवान साथी और एक घर से दो जनाजे, एक बहन और एक भाई। ये कहना और सुनना आसान है, इसको सहना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला सबका बैठना कबूल फरमाए। तो मेरे आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी है, माएँ बहनें भी बैठी हैं। ताना नहीं देना, सब्र करना है, और सब्र वालों के साथ अल्लाह होते हैं, और जिसके साथ अल्लाह हो जाए वो कभी नाकाम नहीं होता है। जिसके साथ अल्लाह की मदद आ जाए वो कभी नाकाम नहीं होता है। जो अल्लाह पे भरोसा कर ले अल्लाह उसे कभी नाकाम नहीं करते हैं। हमारे एक भाई हैं, वो जज के साथ होते हैं। मैं आपको अल्लाह का इंसाफ बताता हूँ, मानसेरा में थे, जज के साथ थे, और उस लड़के ने दोनों भाइयों को बेदर्दी से शहीद किया, और उसकी माँ और बहन केस करती रही। और वो दो जो लड़के थे मारने वाले बड़े चालाक थे, उन्होंने केस को खराब किया, झूठे गवाह पेश किए, झूठे लोग लाए, वक्त बताया फला फला जगह मौजूद थे, हमने कत्ल नहीं किया। तो जज साहब ने फैसला देते हुए जब उनको आजाद किया, सुने, जज साहब ने कहा मैं आपको आजाद कर रहा हूं, मेरे पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन जवानों याद रखना ये बूढ़ी मां खड़ी है, ये उस कातिल जिसको कत्ल किया उसकी बहन खड़ी है, इनके आंसू रहगान नहीं जाएंगे। मैं मजबूर हूं, मेरे पास आपका कोई सबूत नहीं है, लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जब अल्लाह की लाठी लगती है पूछने वाला कोई नहीं होता है। आजाद हुए, वो माँ भी रो रही है, वो बहन भी रो रही है। हमारे वो रिश्तेदार साथी कहते हैं हम भी उनको देखकर रोने लगे। हम मजबूर हैं, हमने फैसला नहीं कर सका, गवाह नहीं थे, झूठे गवाह उन्होंने पेश किए। वो खुशी से निकला, उसने वहां पे अदालत से बाहर निकल के मिठाई ली और खुश हुआ, इन पे ताने कसे। अल्लाह ने देखा कि ये मेरी बूढ़ी माँ मेरे महबूब की उम्मत की ये रो रही है, और इसका जवान बेटा उसके साथ जुल्म हुआ। वो तेजी से एक लारी आई, गाड़ी आई, उसका वो सरिया पीछे का बाहर था, उसके पेट में लगा, पूरे जिस्म को चीरता हुआ लारी साथ लेकर गई, दीवार के दूसरी तरफ जाके मारा, शोर हो गया, लोगों ने उठाया, दूसरा भाई भाग गया, उठा के लाए तो जज ने रोते हुए कहा माँ मैंने इंसाफ नहीं किया, आज मेरे रब ने तेरे हक में इंसाफ कर दिया। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। हमने रोना छोड़ दिया, हमने गिड़गिड़ाना छोड़ दिया। जालिम ये कहता है मैं झूठ बोलकर बच जाऊंगा, मैं जालिम का कभी साथ न देना। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, उस्ताद मोहतरम ने इशारों इशारों में आपको हर बात बता दी है। आप अक्लमंद हैं, आप समझदार हैं, जालिम का कभी साथ नहीं देना, नहीं बोल सकते हो, खामोशी से जुदा हो जाना। जालिम की जब उस पे अल्लाह की वार पड़ती है फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं होता है। अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। एक ही घर के 4 जनाजे। सहाबिया रसूल को पता चला मेरे आका जख्मी हो गए, भागती हुई जा रही है ऊंट के मैदान में, आंखों में आंसू जा रही है, पाँव में जूतियां नहीं है, भागती हुई जा रही है, पसीना निकल रहा है, और रोते हुए चली गई ऊंट के मैदान में। मुझे पता चला मेरे महबूब जख्मी हो गए। एक सहाबी ने बढ़कर कहा कहाँ जा रही हो? आका का पूछने के लिए जा रही हूँ, पर मैं छोड़ो
मुझे और कुछ ना बताना। सहाबी ने कहा आपका बेटा शहीद हो गया। सहाबी रसूल कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह, शहादत के लिए भेजा था, मैं बेटे का पूछने के लिए नहीं आई, मैं तो अपने महबूब का पूछने के लिए आई हूँ। आगे चली गई। सहाबी रसूल ने बढ़कर कहा आपके वालिद शहीद हो गए, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद का पूछने के लिए नहीं आई, रसूलुल्लाह का पूछने के लिए आई हूँ। 4 जनाजों का पता चला, एक घर के 4 जनाजे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शहीद हो गए। एक आंसू नहीं बहा, कोई शिकवा नहीं किया, कोई गिरबान नहीं फाड़ा, कोई अपने मुंह पे तमाचे नहीं मारे, अपने कपड़े नहीं फाड़े, अपने सर से कपड़ा नहीं उतारा, रोती हुई जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 जनाजे अल्लाह के नबी की मोहब्बत में उठ गए। मैं उनका पूछने के लिए नहीं आई, मैं तो रसूलुल्लाह का पूछने के लिए आई हूँ। अल्लाह के प्यारे महबूब, 2 जहां के सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर पड़े। जब नजर पड़ी मेरे आका को देखा, रोने लगे। आका को पता चल गया 4 जनाजे इस औरत के उठे हैं। मेरे महबूब खामोश हो गए और रोते हुए कहने लगी मोहब्बत तो ऐसी होती है, पर मैं आका जी मरना तो मरना है, मैं खुश नसीब हूँ, मेरे घर के 4 जनाजे आपकी मोहब्बत में उठे हैं। सारी रिश्तेदारी, सारे मेरे रिश्तेदार, सारी औलाद, सारी कायनात वाले कुर्बान हो जाते, लेकिन आपको देखा अल्लाह ने, मुझे आपको देखने की बरकत से अल्लाह ने मेरे सारे गमों को दूर कर दिया है। ये मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मेरे माओ बहनों, आज अवैस भाई की याद में सारी बैठी हुई हैं, बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, मेरी बहन के रिश्तेदार भी आए हुए हैं, सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाई और रिश्तेदार अजीज और कारब भी बैठे हुए हैं। सबको दुख है जाने का, शहादत की मौत मिली है। दुख क्यों ना होता, मैं अपने गांव में जाता हूँ, हमारी एक मामानी है, उनका बेटा शहीद हुआ है, कभी वो उसकी वर्दी उठा के लाती है, मुझे बता के कहती है ये वर्दी पहन के मेरा बेटा गया था, वापस आया तो वो तो कफन में आया है। माओ को कौन सहारा देगा, बहनों को कौन सहारा देगा। दुख तो जरूर होता है मगर शिकवा नहीं करना है। आंखों से आंसू निकल आते हैं, अल्लाह में आजमाइशों के काबिल नहीं। औलाद को जवान करना बड़ा मुश्किल होता है। जब बेटा जवान होता है तो बाप के दिल में ये ख्याल होते हैं अब मेरे सर का वजन मेरे कंधों पे आ गया है, मेरा बेटा मेरा साथ कर देगा। वो जवान बेटे का जब जनाजा उठता है बाप को कौन सहारा दे सकता है। वो जवान बेटे का जब जनाजा उठता है माँ को कौन सहारा दे सकता है। अल्लाह ही सब्र दे, और सब्र सहाबा इकराम ने किया है। सहाबिया रसूल है, खामन जहाद पे गए, घर में वापस आए और जब इतला दी है खामन घर में आए, सहाबिया ने घर को साफ कर दिया। बेटा गिर कर शहीद हो गया। माँ ने अपने बेटे पे चादर दी, चादर देकर उसको यूं लगा जैसे सुला दिया है। खामन घर में आए, बेटे के बारे में पूछा, कहा सो चुका है। खामन ने बीवी से रात गुजारी, बातें हुई, रोते हुए। ऐसी सहाबिया, ऐसा सब्र देखें। बेटे की लाश घर में पड़ी हुई है, अपने खामन को नहीं बताया, यूं सोचा कि ये थके हुए जिहाद से आए हैं, सुबह बता दूंगी। जब सुबह हुई मस्जिद नबी को जाने लगे, साहबी रसूल ने बुलाकर कहा मैं एक आपसे बात पूछूं, अगर कोई अमानत मेरे पास रखे, आपके पास रखे, वो अमानत वापस मांगे, क्या करोगे। साहबी रसूल ने कहा मैं तो खुश हूँगा, अमानत दूंगा, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। क्या कहना चाहती हो। पकड़ा जाके अपने बेटे के चेहरे से कपड़ा उठाया, आपके आने से पहले बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। मैंने कहा आप थके हुए हो, मैंने आपको तकलीफ नहीं दी है। सहाबा किराम रोने हुए अल्लाह के नबी के पास जाके मेरे आका को सारा वाक़ा सुनाया, रो भी रहे हैं। जिब्राइल अमीन आ गए, पर मैं आका इस सहाबिया की बीवी को, सहाबी की बीवी को सलामत करना, इसकी बरकत से अल्लाह ने इनको बेटा भी अता फरमाया और सब्र की वजह से अल्लाह इनसे राजी भी हो गए। सहाबी हैं तो राजी अल्लाह होते हैं। जब अल्लाह का ताल्लुक हो, मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जवान ने भी मरना है, बच्चे ने भी मरना है, मौत की याद करनी है। आज मैं बाजार में मेरा एक दोस्त
कहता है मेरे पीठ पे देखो ये निशान लगे हुए हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैं रास्ते से आ रहा था, एक अजदा भागते हुए आया, बहुत बड़ा सांप था, स्याह सांप था, भागते हुए आके उसने मेरी टांगों पे पकड़ लिया, मैं डर के नीचे गिरा, मैं बेहोश हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। रब्बा ओ मेरे नौजवान भाई, ये दुनिया का सांप है, मेरी माँ बहनों ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, इंसान डर के बेहोश हो जाता है, आंसू निकल आते हैं, जिस्म कांपने लग जाता है, इंसान भागने लग जाता है, शोर करने लग जाता है, हाय सांप आ गया। सुनो ना मेरे भाइयों बुजुर्गों, कब्र का सांप तो इतना सख्त है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कब्र का सांप अगर जमीन में फूंक मार दे, पूरी जमीन में सारा सब्जा खत्म हो जाए, इतना जहरीला सांप है। 70 गज जमीन में इंसान धंस जाता है। ये जब इंसान मरता है, जनाजा उठा के लोग जाते हैं, कोई कफन देने वाला होता है, कोई कपड़े फाड़ने वाला होता है, कोई आके रोने वाला होता है, कोई साबुन देता है, कोई पानी डालता है, कोई कहता है मेरा क्या बनेगा, हाय जवान था तू मर गया, मेरी कमर टूट गई है। बहनें आकर कहती हैं भाई मेरा क्या बनेगा, माँ कहती है बेटा मुझे वीरान करके चला गया। हर कोई अपने अपने अल्फाज कहता है। एक मरने वाला फट्टे पे रखा हुआ होता है, वही आंखें होती हैं, वही दिमाग होता है, वही हाथ होते हैं। मेरे साथ भी ये होगा, आपके साथ भी होगा, हाजी साहब के साथ भी होगा, कारी साहब के साथ भी होगा, आलिम है तो उनके साथ भी होगा, सारे के सारे इनके साथ मेरे और आपके साथ, माएँ बहनें हैं तो इनके साथ ये मंजर होगा। इसकी तैयारी करनी है, आंखों में आंसू बहाने हैं, कब्र की तैयारी करनी है। कभी कभी मेरे भाइयों जब मुर्दे को जमीन में उतारा जाता है, मैयत को उतारा जाता है, तो उन कपड़ों को पकड़कर जब इंसान नीचे रखता है, जरा देखो कोई सरांदू नहीं है, कोई तलाई नहीं है, कोई गद्दा नहीं है, इसी जमीन पे है, सर नीचे हो जाता है, वही कफन मरोड़ के रख देते हैं, कोई सर मोड़ता है, चेहरा तब्दील कर दिया जाता है। मौत तो किसी को नहीं छोड़ती। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बेटा है, अल्लाह वाला है, ये बादशाह है, बेटा पास आया, दरबार में आया, फटे पुराने कपड़े लगे हुए, वो जरा ने कहा आपका ये बेटा कैसा है, ये तो अजीब आदमी है, आपको इसने जलील कर दिया है। घर में गए, अपनी बीवी को कहा, वो कहने लगा अच्छा मुझसे मेरे बालों तंग आ गए, सारे लोग बैठे हुए हैं, हारून रशीद के बेटे ने दीवार पे परिंदा बैठा हुआ है, कहा बात अब्बू जी आप भी बादशाह हैं, मेरी बादशाह को भी देखो। कहो परिंदे अल्लाह की जात का वास्ता तू अल्लाह को मानता है, उड़ना मेरे हाथ पे आ जा। सब ने देखा वो परिंदा उड़ के हारून रशीद के उस बेटे जो गरीब की शक्ल बनाई हुई थी, फटे पुराने कपड़े लगे हुए थे, उनके हाथ पे आके बैठ गया। फिर कहा जहाँ जहाँ तू से आया था वहां चला जा। चले गए घर में, माँ को कहा यहाँ नहीं रहता, कुरान ले लिया, एक चादर ले ली, माँ ने अंगूठी दे दी, वहां से निकल गए, मिस्र चले गए, वहां जाके मजदूरी करने लग गए। एक हफ्ते में एक दिन मजदूरी करते, वो रकम लेते, पहले तय करते कि मैं एक रकम में 1 दिरहम और 4 औसत में लूंगा, 1 दिरहम का चौथा हिस्सा, ये पूरा हफ्ता मेरा वक्त गुजरेगा। सारी रकम लेते, पहले तय करते नमाज के वक्त में नमाज पढ़ूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। वो साथी फरमाते मैं लेकर चला गया, क्या देखा शाम हुई, 7 और 10 आदमियों जैसा काम कर दिया। कैसा नौजवान है, बात नहीं करता है, काम कितना बेहतरीन कर दिया। मैंने रात शाम को मजदूरी ज्यादा देना चाहिए, पर मैं ज्यादा नहीं लेता, जो तय हुई वही लूंगा। दूसरे दिन मैंने तलाश किया, लोगों ने कहा ये हफ्ते में 1 दिन काम करते हैं। मैंने हफ्ते का इंतजार किया, दूसरे हफ्ते चला गया, मजदूरी के लिए ले आया। मैं क्या देख रहा हूँ, वो पत्थर लगाने के करीब होता है, गारा लगाता है, पत्थर खुद जुड़ जाते हैं। इसी तरह 10 आदमियों के मुकाबले में काम कर दिया, बड़ा परेशान हो गया, ज्यादा पैसे देने चाहे नहीं लिए, चले गए। अगले हफ्ते का इंतजार हुआ, वहां पे पहुंचा, साथी ने कहा वो जंगल में बीमार है, नौजवान है, बादशाह का बेटा है, बीमार हो गए, बीमारी की हालत में है, सर के नीचे ईंट रखी हुई है, पत्थर रखा हुआ है, बुखार है, मौत की कश्मकश में है। फरमाते हैं मैं वहां पे चला गया, मैंने उनका सर उठाया, अपनी गोद में रखा, रोक कर मैंने कहा मैं तो फलाऊं, जरा उठो ना। फिर सर नीचे रखा, मेरी बात सुनना, ये मेरी चादर
اور یہ میرا لوٹا میری پونجی قبر کھودنے والے کو دے دینا، یہ چادر میں کفن دے دینا، یہ انگوٹھی اور قرآن واپس لے جانا، میرے والد کو دے دینا۔ ایک غلام جنگل میں اللہ کو پیارا ہو گیا اور پیغام دے رہا تھا، میرے والد جی یہ بادشاہ جہاں ہی رہ جائے گی، ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے، آپ دنیا میں مست ہے۔ اس وقت پتا چلا یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ میں آ گیا ہارون رشید کے پاس، میں نے آواز دی، قافلے نکلے، 10 قافلے نکلے، ہارون رشید نکلے، میں نے آواز دی، ہارون رشید رک گئے۔ میں نے کہا میں ایک مسافر ہوں، ایک مسافر کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، کار روک دو ان کو۔ مجھے کمرے میں روک دیا گیا، واپس آئے کپڑے گرا دیے، گرا کر پوچھا کو کہاں سے آئے ہو، کس کو کس نے غسل دیا؟ میرے بیٹے کو کہا میں نے دیا۔ میرے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دینے لگے، اپنے بیٹے کی یاد میں رونے لگے۔ جوانی کی حالت میں بادشاہ کا بیٹا اللہ والا بن کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ جوان نے بھی مرنا ہے، چھوٹے نے بھی مرنا ہے، بڑے نے بھی مرنا ہے، امیر نے بھی مرنا ہے، غریب نے بھی مرنا ہے، جھوپڑی والے نے بھی مرنا ہے، کوٹھیوں والوں نے بھی مرنا ہے۔ امام الانبیاء نہ رہے میرے بھائیوں بزرگوں میں، اور آپ کس باغ کی مولی ہے کہ اس دنیا میں رہیں گے؟ ہم نے بھی اس دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ کتنی تیاری کی ہے، کتنے جنازے اٹھائے ہیں، کتنے جنازے پڑے ہیں، کتنی قبریں کھودی ہیں، کتنی قبروں میں مردوں کو اتارا ہے، کتنی قبریں کھودی ہیں، کھودنے کے بعد وہاں بیٹھے ہیں۔ آج تو ہم قبر بھی کھود رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جنازے پہ جاتے ہیں وہاں بھی گناہ ہوتا ہے۔ میری مائیں بہنیں جنازے پہ جاتی ہیں، ایک دوسرے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، ساس بہو کی غیبت کرتی ہے، بہو ساس کی غیبت کرتی ہے، نند کی غیبت ہو رہی ہے، رشتہ داروں کی غیبت ہو رہی ہے، پڑوسیوں کی غیبت ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ نکلا، میرے آقا نے پوچھا کون ہے؟ آقا ایک عورت کا جنازہ ہے، بڑی با اخلاق تھی، بہت زیادہ لوگوں پہ خرچ کرنے والی تھی، ایک کام ضرور کرتی تھی۔ کون سا کام؟ پڑوسیت سے تنگ تھے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ ایک دن بعد پھر ایک جنازہ نکلا، میرے آقا نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ عورت کا جنازہ ہے، بات چیت کم کرتے، با اخلاق تھے، لیکن سارے لوگ اس سے راضی ہیں، پڑوسی بھی اس سے راضی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے۔ او میری ماں بہنوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں گئے، سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ جبرائیل امین آئے، میرے آقا کے سامنے رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل کیوں روتے ہو؟ جبرائیل امین نے کہا محبوب کبریا، رب العالمین نے کہا جہنم میں جاؤ، جہنم کی سیر کر کے آؤ۔ میں نے جہنم میں گیا، میں نے جہنم کی چادر کو دیکھا، اگر وہ جہنم کی چادر زمین و آسمان میں لٹکا دی جائے، ساری دنیا کی چیزیں جل کے راکھ ہو جائیں، اتنی تپش ہے اس میں۔ اس تپش کو دیکھ کر میں رونے لگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، میرے اور آپ کے محبوب، دو جہاں کے سردار، دو جہاں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ امت کے لیے دعائیں کی ہیں، عورتوں کے لیے مردوں کے لیے دعائیں کی ہیں، دعا کر کے روتے رہے ہیں۔ کل من علیہ فان، ہر چیز نے فانی ہونا ہے، اے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ یہ 18 ذی الحجہ کو میرے آقا کے پیارے داماد عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 2 بیٹیاں میرے آقا کی ان کے نکاح میں ان کے گھر میں ہیں، دوسری بیٹی فوت ہوئی۔ عثمان رو رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہوتے ہو، روتے کیوں؟ کاش میری 70 بیٹیاں ہوتی، میں آپ کے نکاح میں دیتا رہتا۔ آپ جیسا داماد کوئی نہیں، رسول اللہ جیسا سسر کوئی نہیں ہے۔ اور موت بھی کیسی، اللہ اکبر، پانی بند کر دیا، 40 دن پانی بند کر دیا۔ اس کنویں کے پانی بند کیا ہے جو عثمان ذو النورین کے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ میٹھا پانی پینے کا نہیں تھا، یہودی کا پانی تھا، عثمان ذو النورین نے خریدا، وہ پیسوں سے دیتا تھا۔ انہوں نے کہا آدھا کنواں مجھے دے دو، آدھا کنواں خریدا اور اعلان کر دیا میری جب باری آئے، مسلمان بھی آ کر لے کر جائے، کافر بھی آ کر لے کر جائے، میں کسی کو منع نہیں کرتا۔ یہودی نے دیکھا آمدنی ختم ہو گئی، سارا کنواں حضرت عثمان ذو النورین پہ فروخت کر دیا۔ عثمان ذو النورین نے آ کے اعلان کیا آج کے بعد یہ کنواں میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ وہ میٹھا پانی جو لوگ پیتے رہے، آج حضرت عثمان ذو النورین پہ بند کر دیا گیا۔ مرنا آسان نہیں ہے،
مرنا بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ 40 دن گزر گئے، پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا۔ عثمان ذو النورین نے پیغام دیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پانی تو بھیج دو۔ راستے میں ظالم کھڑے تھے، علی المرتضیٰ گھڑا لے کر آئے، اپنے سر پر لے کر آئے۔ یہ محبت ہے صحابہ اور اہل بیت کی، صحابہ اور اہل بیت کی۔ گھڑا لے کر جانے والے کون ہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، گھڑا لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں ظالموں نے دیکھا، پانی گرا دیا۔ جب پانی گرا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اندر پھینکی کہ پتہ چل جائے میں پانی دینے کے لیے آیا ہوں۔ 40 دن گزر گئے، جمعرات کا دن ہے، علی المرتضیٰ گئے ملاقات کے لیے۔ امیر المومنین اجازت ہو مقابلہ کریں، فرمایا نہیں، 40 دن روزہ رکھا ہے، کیسے بھوک پیاس برداشت کی ہے؟ فرمایا جب بھوک پیاس لگتی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، نوافل پڑھنا شروع کر دیتا، اللہ میری بھوک پیاس کو ختم کر دیتے۔ قرآن سے اور نوافل سے۔ مشکل آئے تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے، اللہ سے۔ اپنا دکھ اللہ کو بتاؤ، مخلوق تانا بھی دے گی اور ہنسے بھی گی کہ میری بد دعا لگی ہے نا، یہی ہوتا ہے نا۔ اور اللہ نہ تانا دیتے ہیں اور اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ خوش ہو کے دیتے ہیں، اور میرے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے۔ مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ مخلوق کیا دے سکتی ہے؟ یہ رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مخلوق کے ہاتھ میں ہوتا تو کبھی سے کبھی ہم ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں۔ فرمایا کیا کھاتے پیتے رہے؟ کہا قرآن پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ کیا پیغام ہے امیر المؤمنین؟ فرمایا میں نے تیاری کر دی ہے، آج مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے۔ کیا کہا میرے محبوب نے؟ فرمایا کہا عثمان صبر کرنا، کل شام کو افطاری جنت میں ہم سارے اکٹھے کریں گے۔ میں نے تو شہادت کی تیاری کر لی ہے، میں نے صبر کے دامن کو تھام لیا ہے۔ علی المرتضیٰ روتے ہوئے واپس آئے اور ان کے دروازے پہ اپنے دونوں شہزادوں کو چوکیدار چھوڑ دیا، تلواریں دے کر چوکیداری کرو۔ شہزادے چوکیداری کر رہے ہیں، محبت سے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ سبائی دیوار پھلانگ کے آئے اور آ کر تلواریں ماری، ایک لٹھ ماری، خون گرا، اور گرا بھی قرآن پہ۔ کس پہ گرا؟ یہ ہے لال قرآن پہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ شہید کر دیا گیا، حضرت نائلہ کی انگلیاں کاٹ دی گئی، جنازہ نہیں اٹھانے دیا۔ کوئی آ کے چہرہ اقدس پہ تھوک رہا ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے، آ کے پسلیاں توڑ دی، پسلیاں توڑ دی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلا، روتی بھی آئی، آواز دی ظالموں جنازہ اٹھانے دو ورنہ میں خود آؤں گی، وہ جنازہ اٹھاؤں گی۔ کافر پیچھے ہٹے، ظالم پیچھے ہٹے، قاتل پیچھے ہٹے۔ فرمایا رات کو جنازہ اٹھے گا اور چند لوگ جنازہ اٹھائیں گے، یہ منظور کر لو تو ٹھیک ہے۔ منظور ہو گیا، رات کو جنازہ اٹھا۔ میرے اور آپ کے جنازوں پہ پھول کی پتیاں ہوتی ہیں اور ہم لکھا ہوا کلمہ ڈالتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں۔ عثمان ذو النورین وہ مظلوم شہید ہیں جن کے جنازے پہ چھتوں سے لوگوں نے پتھر مارے ہیں، پتھر مارے ہیں، وہ بھی شہید ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوانی کی حالت میں شہید ہوئے۔ کربلا کے میدان میں نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے نکلے، شہید ہو گئے، داڑھ لادہ ہو گیا، جسم لادہ ہو گیا، جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ موت کا وقت مقرر ہے، اللہ سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ ہر ایک نے مرنا ہے، موت کی تیاری کر لو، توبہ استغفار کر لو، آنکھوں سے آنسو بہا لو۔ جس طرح استاد محترم نے کہا آنکھیں کھلتی نہیں ہیں،
ये आंखें किसकी? अल्लाह की है। तो अल्लाह ताला इस प्रोग्राम की बरकत से हमारे उन बहन भाइयों को भी सेहत अता फरमाए जो 20 और 25 साल से बिस्तर मर्ग पे हैं। अल्लाह खिदमत करने वालों को अजर जजील अता फरमाए। बहुत बड़ा ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा है और अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम कि किस तरह अल्लाह ताला उनको, और वो हमारा भाई कितना प्यारा और प्यारी बात करने वाला, जिस्म में सांस नहीं है, आपके पास वो पड़ोस में मौजूद है, कभी पास जाकर बैठा करो। हम तो उनको भूलते नहीं, आप भी ना भूलना। आप भी, अल्लाह बता रहे हैं कि ये देखो ये मेरा बंदा बिस्तर पे है 20 साल से, उसकी बहन 25 साल हो गया वो बिस्तर पे है। उनके वालिदैन से पूछो, ये बहुत मुश्किल आजमाइशें होती हैं मेरी माओ बहनों, मौत का कोई पता नहीं। हमारे इलाके में आपको पता है एक सुजुकी गिरी थी, वो जो उस्तानियाँ थी उसमें तो सारी बहुत नीचे चले। एक मेरी बहन जो बापर्दा थी, हाथों पे दस्ताने, जुराबें, वो स्कूल की अरबी टीचर थी, इस्लामियात टीचर थी। तो अल्लाह सबको ऐसी मौत से महफूज फरमाए, अल्लाह पर्दे की मौत नसीब फरमाए। तो सबके, किसी ने अपने कमीज उतार के उनके जिस्म पर दी, किसी ने अपनी चादर दी, कपड़े फट गए, सबसे दुपट्टे उतर गए। एक वो मेरी बहन सबसे आगे जाकर गिरी, लेकिन उसके चेहरे से नकाब भी नहीं उतरा। मैंने साथियों को कहा ये दुनिया में बापर्दा रहती थी, अल्लाह ने इसको मौत भी पर्दे वाली अता फरमाई है। दुनिया में बापर्दा रहेंगे मेरी माँ बहनों, मौत का कोई पता नहीं, अल्लाह ताला आपको मौत भी पर्दे वाली अता फरमाएंगे। और ये मांगा करे। एक साहबी रसूल आई, मिर्गी की बीमारी, आका जी दुआ कर दीजिए मुझे सेहत मिल जाए। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए, फरमाया इसी बीमारी पे सब्र करोगी जन्नत मिलेगी। आका जी ठीक है मैं सब्र करती हूँ, लेकिन जब बीमार होती हूँ मेरे कपड़े खुल जाते हैं, बेपर्दा हो जाती हूँ, मैं बड़ी परेशान होती हूँ, रोती हूँ। आका खामोश हो गए। उस सहाबिया के रोने की तरफ देखा, ये मोहब्बत, अल्लाह का डर। कपड़े उतर जाते हैं, बड़ी परेशान होती हूँ, बीमारी पे तो सब्र कर लूंगी, लेकिन जब मैं बेपर्दा होती हूँ तो मुझे बड़ी हया आती है। आका ने नबूवत वाले हाथ उठाए, अल्लाह अकबर, कैसे मोहब्बत वाले हाथ है मेरे महबूब के। अल्लाह कदर की तौफीक अता फरमाए। हर कोई अपने महबूब को याद करता है। कभी मेरे नौजवान साथियों छुप के इमामुल अंबिया को याद करके रोया करो, आका के आंसुओं को याद करके रोया करो, आका की मोहब्बत को याद करके रोया करो। मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कल जब जाएंगे हशर में, पुलसरात पे जाएंगे, मेरे महबूब खड़े होंगे मेरे और आपके सामने। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर हमारा आमाल नामा बाएं हाथ में हुआ तो किस मुंह के साथ रसूलुल्लाह के सामने जाएंगे। अगर अमाल नामा दाएं हाथ में मिल गया तो बड़े खुश होकर जाएंगे। अल्लाह के प्यारे महबूब, दो जहां के सरदार, हमारी औलाद कुर्बान हो जाए, कहो आमीन। औलाद कुर्बान करना बड़ी मुश्किल है। गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह कादियानियों के साथ मुनाजरा है। एक ही बेटा मौत की कश्मकश में है, बीमार है। घर में गए, बीवी ने कहा बेटा बीमार है, खबर देने वाले आए, कादियानियों के साथ मुनाजरा है। सोचा खामोश रहे, अल्लाह के नबी की नामूस का मसला है। अपनी बीवी को कहा जिंदगी अल्लाह ने दी तो अल्लाह जिंदा रखेंगे, मौत आई तो मैं रह के भी बचा नहीं सकता। इसे मोहब्बत कहते हैं, इसे मोहब्बत कहते हैं। अड्डे पे पहुंचे, खबर देने वाला आया, वापस आ जाइए, बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। कहा किसी को कहो जनाजा पढ़ ले, मैं आके क्या करूंगा, मैं तो रसूलुल्लाह की हुर्मत और मोहब्बत के लिए जा रहा हूं। यहां पे कोई और भी जनाजा पढ़ा सकता है, मेरे बेटों से ज्यादा मेरे महबूब की इज्जत और नामूस का मसला है। अल्लाह हम सबको ये जज्बा नसीब फरमाए। मेरे नौजवान साथियों, सारी सारी रात मोबाइलों पे खेलते रहते हो, सुबह की नमाज रह जाती है,
सारा दिन रास्ते में चलते हुए मोबाइलों के साथ खेलते रहते हो, पता नहीं चलता साथ चलने वाला कौन है कौन नहीं है। गाड़ी वाला हारन मारता रहता है और फिर गालियां दे के भी जाता है, अपनी दुनिया में मगन है। फरमाया कि बेटे का जनाजा पढ़ा दो, एक ही बेटा है मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ज्यादा कीमती नहीं है। जाके पहुंचे, कादियानी पहले ही भाग गया, ये मोहब्बत होती है। लेकिन अपने बेटे का जनाजा छोड़ दिया। साहब ये रसूल ने के लिए मेरे आका ने हाथ उठाए, अल्लाह ये मुसलमान साहब ये रसूल है, मिर्गी की बीमारी है, बीमारी पे तो सब्र कर दिया, अल्लाह जब कभी बीमार हो तो इसका पर्दा ना खुले। दुआ अल्लाह के नबी ने कही, कबूल हो गई। जब बीमार होती पर्दा ना खुलता, बड़ी खुश है। कुछ अरसे के बाद फौत हो गई। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया, पढ़ा के मेरे आका ने फरमाया, मेरे साहबा ये सब्र करने वाली बीमारी पे और बाप पर्दा साहब ये रसूल है, आपने इस औरत का जनाजा पढ़ा, मैं देख रहा हूं कि वो जन्नत के बाला खानों में तैर रही है। मरना तो है ना, अल्लाह ऐसी मौत हर मेरी माँ बाप बहन को नसीब फरमाए। मौत का कोई पता नहीं, शिकवा नहीं करना, गिला नहीं करना, अल्लाह मैं आपकी जगह मर जाती। मौत का तो वक्त है, शहादत का दुख है, बहन का भी है, भाई का भी है, लेकिन सब्र करना, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होते हैं। जिन जिन के माँ बाप जिंदा, जरा हाथ खड़ा करें। कितने खुश नसीब हो संगियो, माँ बाप घर में जिंदा हो और इंसान सुकून से ना हो, बड़ा बदनसीब है। चेहरा चूम लो, हाथ चूम लो। मैं उस दिन भी साथियों को सुनाया, हाजी साहब मेरा एक साथी गाड़ी चला रहा था, वो कहता है पंजाब में कहीं था तो गाड़ी के टायर पंचर हो गए, दोनों टायर फट गए, मैं बड़ा परेशान हूं। दो नौजवान गुजरे, एक दूसरे से कहता है यार मैंने आजमाया, जब कभी मुश्किल आती है ना तो मैं माँ के पाँव को धो के पी लेता हूँ, मेरी मुश्किल ख़त्म हो जाती है। तो मेरे ऊपर भी परेशानी थी, मैंने कहा अल्लाह आज तू मुझे बचा रहा, मैं भी जाके माँ के पाँव को धो के पीऊँगा जी। एक साथी मिला, उससे पैसे लिए, टायर लगाए, अगले हफ्ते घर आया। सुनो बात, जज्बा था, मेरी माँ गोबर पीछे कर रही है भैंस से, मैंने पकड़ा, माँ के हाथ को चूमा, में चूमते चूमते में बैठाया, मेरे माँ के पाँव धोए, बर्तन में धोए, गोबर लगा हुआ है, जज्बात हूँ। माँ दूसरे कमरे में गई, मैंने वो पानी छुपा के पी लिया, गोबर वाला पानी, गोबर वाला, पता नहीं चला, पी लिया। जब वापस आई तो माँ ने कहा पानी किधर गया, तो मेरे मुंह के साथ लगा, उसने कहा पी लिया। ओए ये क्या क्या तूने गोबर वाला पानी, गंदा पानी पी लिया है? और माँ छोड़ बस, पी लिया है, पी लिया। मैंने बात सुनी, वो दिल से दुआ निकली, अल्लाह ने गाड़ी भी दी, अल्लाह ने मदीने की जियारत भी करवाई। अब मदीने में होता है और 2-3 महीने वहाँ, 1 महीने पाकिस्तान, 2-3 महीने वहाँ, एक सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी, बेहतरीन। कहते हैं माँ के कदमों से वो बरकत से वो दुआ निकली, अल्लाह ने दुनिया भी दे दी, अल्लाह ने दीन भी दे दिया है। भाई अपने वालिदैन के चेहरों को चूम कर तो देखो। दुनिया के पीछे मरने वालों, दुनिया बड़ी बेवफा है। मरना है तो अपने माँ बाप की मोहब्बत में मरना है, मरना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरना है, मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरना है। बाकी ये दुनिया दो रंगी है, आज एक की कल किसी की, ये किसी का साथ देती नहीं है। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ लें, कुरान से मोहब्बत करें, इस मस्जिद को आबाद करें और इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। ऐसे मामलात गुनाहों की वजह से होते हैं, जब गुनाह कसरत से होते हैं, अल्लाह नाराज़ होते हैं, तो ऐसे मामलात होते हैं। तो रोना है, गिड़गिड़ाना है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना है। मरना एक ना एक दिन है, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, और मौत की तैयारी नहीं की है, अल्लाह की कसम बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है। कोई भी साथ नहीं जाएगा, सारे कब्र में मिट्टी डाल के फौरन उठ के चले जाते हैं। वारसों को आता है कि मेरा कोई मेहमान नाराज ना चला जाए, जाके रोटियों के पीछे लग जाते हैं, और जनाजा निकलता ही नहीं तो मेरी बहनें वो दस्तरखान बैठा के वो खाने पीने पे लग जाती हैं। कौन किसी के लिए दुखता है? हम अपने माँ बाप को भूल गए, हम किसको याद करेंगे?
हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और रोने को भूल गए, हम और किसको याद करेंगे? हम सहाबा और अहले बैत की कुर्बानियों को भूल गए, हम और किसको याद करेंगे? भाई ये बचे हुए हैं हम, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की वजह से बचे हुए हैं। तो हर चीज ने फानी होना है, 50 साल बाद में और आप यहाँ पे नहीं होंगे, कोई और नस्ल होगी। ये अल्लाह की जमीन, ये सब कुछ क़यामत तक रहेगा। हाय मेरी जमीन, हाय मेरा मकान, हाय मेरी प्रॉपर्टी, मेरा और आपका कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरे अल्लाह का है। सब कुछ किसका है? अल्लाह का है। ये जिस्म भी अल्लाह का, ये ज़बान भी अल्लाह की, ये दिमाग भी अल्लाह का, ये कायनात भी मेरे रब की है, मेरा और आपका कुछ भी नहीं है। अल्लाह इतनी दुआ करते हैं, उलमा हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम है, हाजी साहिबान हैं, सारे बैठे हुए हैं, अल्लाह हम सबको इसी तरह जन्नत में मुलाकात नसीब फरमा। आप जरा अंदाजा लगाएं, एक दूसरे को हम पहचान लेंगे। यहाँ दुनिया में गुनाह करके एक दूसरे को नहीं बताते, तो वहाँ अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम में से मैं अपना ही सोचता हूँ, अगर आप जन्नत में आप जाएंगे, मैं जहन्नुम में चला गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या कहूँगा कि वो आप देखेंगे मौलवी साहब जहन्नुम में हो, किस गुनाह की वजह से? तो फिर बताऊंगा मैंने तो ये गुनाह किया, उसकी वजह से जहन्नुम में चला गया। बड़ा डर लगता है मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माओ बहनों, बड़ी मुश्किल घटन वाक़या है। सहाबा इकराम रो रो के दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। उमर बिन अब्दुल अजीज इतना रोते और अपने बेटों को कहा, बेटो मैंने कितने लोगों के जनाजे कब्र में रखे, तो मैं देखता रहा कि उनका चेहरा बैतुल्लाह से फिर जाता था। मुझे रखना, अगर मेरा चेहरा बैतुल्लाह से फिर गया तो मेरे लिए तौबा इस्तग़फ़ार करना, अगर ना फिरा तो शुक्र अदा करना। ऐसे दूर अंदेश लोग, ऐसे रोने वाले लोग। और फिर जब बेटों ने दफन किया और फिर देखते रहे चेहरा बैतुल्लाह से नहीं फिरा, तो शुक्र अदा किया, रोते रहे और रोकर वापस आए। हमारे एक साथी, उनकी वालदा फौत होगी, 5 भाई कुरान के हाफिज हैं। जिस तरह आयशा के सारे बेटे कुरान के हाफिज हैं, ये बड़ी खुशनसीबी है। 5 भाई कुरान के हाफिज। मैं पास खड़ा हूं, बड़े भाई ने जनाजा पढ़ाया, रो के पढ़ाया, तलकीन हुई, और बड़े भाई ने दुआ कर दी, ऐ कब्र जरा सोचना, आज तेरे हवाले 5 हाफिज कुरान बेटों की माँ हवाले कर रहे हैं। सारे रोने लगे। 5 बेटे कुरान के हाफिज, क्या अल्लाह उस माँ का ख्याल नहीं रखेंगे? एक बेटा हाफिज हो तो कितना, हर घर से एक बच्चा दें, हमारे उस्ताद जी को देंगे इंशाअल्लाह। एक एक बच्चा कुरान के लिए दें। मेरे नौजवान साथियों, एक एक कुरान के लिए तहिया करें कि हम अपने मदरसे में जाकर कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चियों को पढ़ाएं, कुरान का हाफिजा बनाएं, कुरान की आलमा बनाएं। आपके घरों में सुकून आएगा, आपके घरों में हया आएगी, आपके घरों में मोहब्बत आएगी। ये अंग्रेजी के पीछे भागे, हमारे घरों में आग लगा दी इस इंग्लिश ने, हमारे घरों में ये काफरों के तरीकों ने आग लगा दी। आप सुन्नत के तरीकों पे आए, दुनिया में भी सुकून मिलेगा, मौत भी सुकून वाली मिलेगी, कब्र में भी सुकून मिलेगा, और मेरे महबूब खुशी से इस्तकबाल करेंगे। और जिससे आका राजी होंगे उससे अल्लाह राजी होंगे, जिससे आका नाराज होंगे उससे अल्लाह भी नाराज होंगे। अल्लाह उस दिन मेरे महबूब ने मुंह फेर लिया, हम कहाँ जाएंगे? नौजवान साथियों, सोचेंगे इंशाअल्लाह। रोजाना सोचना है, मौत को अपने ऊपर पेश करना है कि मैं मर रहा हूँ, मुझे फट्टे पे रखा गया, मेरे कपड़े उतारे गए, मेरी जूतियां उतारी गई, मेरी घड़ी उतार दी गई, मेरा मोबाइल ले लिया गया, मेरी अंगूठी उतार दी गई। अब एक लकड़ी के फट्टे पे जिस पे कोई सोता नहीं है मुझे रख दिया गया। कोई टांगे सीधी कर रहा है, कोई कपड़े फाड़ रहा है। अभी जनाजा पाक हुआ, हर कोई कहता है जल्दी जनाजा करना, जल्दी जनाजा करना। वो नाम जनाजे में तब्दील हो जाता है, मैयत में तब्दील हो जाता है। जनाजा करीब हुआ, लोग आते हैं, मुंह देखते हैं, कोई रोता है, कोई खुश होता है, कोई कहता है ऐसा था, कोई कहता है ऐसा था। मर जाते हैं, वापस चले जाते हैं, दफनाने वाले दफना के चले जाते हैं। अकेली कब्र होगी मेरे और आपके लिए, कोई साथ नहीं जाएगा, एक नेक आमाल साथ जाएंगे, अल्लाह की मोहब्बत जाएगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत जाएगी। सबको पता है ना, इसकी तैयारी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। इस मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथियों ने ये प्रोग्राम किया, उस्ताद मोहतरम के हुक्म से ये प्रोग्राम हुआ। अल्लाह ताला हमारे अवैस भाई शहीद और उनकी बहन शहीद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके आखिरत के मनाज़र आसान फरमाए, अल्लाह ताला ये मोहब्बतें नसीब फरमाए।
नौजवान साथियों से अक्सर मैं कहा करता हूँ, अपने बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठो, इन सफ़ेद रीश लोगों के पास बैठो, ये ज़िंदगी का तजर्बा आपको बताएंगे। ये बुढ़ापा अचानक से आएगा, पता नहीं चलेगा। और अपनी आंखें बंद करो, जितने जितने घाटे के सौदे किए वो सारे सामने आ जाते हैं। आप आजमा के देखें, कबीरा गुनाह किए सामने आएंगे, फराड और धोखा किया सामने आएगा। इससे बचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। उस्ताद मोहतरम इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे, फिर अजान होगी, अजान के बाद इंशाअल्लाह फिर नमाज।